প্রশাসনকে বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন, আপনারা উত্তেজিত হবেন না, সবাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। আপনাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ, আপনাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ, কেউ উত্তেজিত হবেন না। পুলিশ প্রশাসনের কাছে বিশেষ অনুরোধ, পুলিশ প্রশাসনের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। আপনাদের বিশেষ অনুরোধ, কেউ উত্তেজিত হবেন না, আপনাদের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। করজোড়ে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা কেউ উত্তেজিত হবেন না। দয়া করে আপনারা আপনাদের জায়গায় বসে পড়ুন। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানালাম। এবারে আপনাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি মাননীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। ভারত মাতা কি। আজকে মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে এসছে, বালুরঘাট থেকে জলপাইগুড়ি অবধি আওয়াজ যাওয়া চাই, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা, ভারত মাতা কি। বন্ধুগণ, আজকে আমরা আমাদের মাঝে শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের নবভারতের ভগীরথ। একদিকে যেমন ভগীরথ মা গঙ্গাকে এই মর্তলোকে এনেছিলেন, আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, সেই ভগীরথ নরেন্দ্র মোদীকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনারা জানেন হয়তো যে নবরাত্রির উপাস করেন উনি, 9 দিন ধরে জল ছাড়া কিচ্ছু খান না। আজকে সেই অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবরাত্রির উপাস করে উপবাস করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের লোকেদের সাথে কথা বলার জন্য, দেখা করার জন্য। বন্ধুগণ, আগামী 26 তারিখে ভোট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল বক্তা, আমি বক্তা নই। আমি বারবার আপনাদের সামনে এসেছি, আমাদের মঞ্চে অনেক বিশিষ্ট জন, আমাদের সাথে জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী থেকে শুরু করে, বিধায়ক অশোক লাহিড়ী থেকে শুরু করে, সত্যেন রায় থেকে শুরু করে, মাহফুজা খাতুন থেকে শুরু করে, শুভেন্দু সরকার থেকে শুরু করে, দেবশ্রীদি, পূর্ণিমাদি, সবিতাদি, বিনয় বর্মন থেকে শুরু করে, আমাদের শঙ্কর চক্রবর্তী, অভিষেক সিংহানিয়া, আমাদের গৌতম রায়, বাপি সরকার সহ সমগ্র নেতৃত্ব, আমাদের জয়ন্ত প্রামাণিক থেকে শুরু করে, নান্টুদা থেকে শুরু করে, প্রণব চৌধুরী থেকে শুরু করে, বড় লিস্ট আছে, সবার নাম বলার সুযোগ নেই আমার কাছে, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে। কিন্তু বন্ধুগণ, 5 বছর আপনারা সুযোগ দিয়েছিলেন, 19 থেকে 24, তার মধ্যে 2 বছর কোভিডে নষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে আপনারা যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব আমরা গোটা বালুরঘাট লোকসভাতে পালন করে দেখিয়েছি। 5 কোটি টাকা দিয়ে বুথে বুথে সোলার লাইট লাগানোর ব্যবস্থা এই জেলাতে সুকান্ত মজুমদার আপনাদের সাংসদ করেছে, আপনারা সেই পুরস্কার পেয়েছেন। আমরা দিল্লির বুকে গিয়ে এই জেলা তথা এই লোকসভার জন্য সাংসদ রত্ন পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছি। বন্ধুগণ, আজকে 16 তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসছেন, আগামীকাল রামনবমী, আর গতকাল আমাদের জেলায় আরো একটি বিশেষ ঘটনা ঘটল। গতকাল এই পিছিয়ে পড়া জেলা, অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, তার হেডকোয়ার্টার বালুরঘাট থেকে পু ঝিকঝিক করতে দিল্লি পর্যন্ত ট্রেন নরেন্দ্র মোদী আমাদের জন্য পাঠালেন। নরেন্দ্র মোদী আসার আগে তার সেবা আমাদের কাছে পৌঁছে গেল। আমরা এইভাবে শিয়ালদা বালুরঘাট ট্রেন চালু করা থেকে শুরু করে সমস্ত ট্রেন আমরা চালু করেছি, নবদ্বীপ থেকে শুরু করে। বিপ্লব মিত্র বাবু লোককে বোঝাচ্ছেন যে এই ট্রেন নাকি ভোটের পর বন্ধ হয়ে যাবে। বিপ্লব বাবুকে বলি, বিপ্লব বাবু,
ভোটের পর না, যেদিন আমি আপনি এই পৃথিবীতে থাকবো না, রাজনীতি থাকবো না, বয়স হয়ে যাবে, সেই সময়ও বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে দিল্লির এই ট্রেন চলবে 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 এবং দিল্লিতে বালুরঘাটের নাম উচ্চারিত হবে। বন্ধুগণ, আজকে বালুরঘাটের মতো প্রান্তিক স্টেশনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অমৃত ভারত স্টেশন করেছে। 25 কোটি টাকা এই বালুরঘাট স্টেশনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। আগে আমরা কোনোদিনও দেখিনি। আর আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বলেছিলাম এখানে মেডিকেল কলেজ নেই, মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পায় না। আমি বলেছিলাম যে আপনার পিএম রিলিফ ফান্ড থেকে আমাদের একটু বেশি করে দেবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই 5 বছরে 252 জন রুগীর জন্য 6,45,00,000 টাকা, মনে রাখবেন 252 জন পেশেন্টের জন্য 6,45,00,000 টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিএম রিলিফ ফান্ড থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কত গরিব মানুষ চিকিৎসা পেয়েছে, সুস্থ হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য। হিলি বালুরঘাট রেল প্রকল্পের জন্য 500 কোটি টাকার বেশি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। আজকে সেই প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আমাদের সামনে পেয়েছি। তাই বন্ধুগণ, মনে রাখবেন, এই জেলাতে আমি বড় হয়েছি, এই জেলা আমার স্বপ্ন, আগামী দিনে আরো অনেক স্বপ্ন আছে। এই জেলা থেকে এরপর দক্ষিণ ভারতের ট্রেন চালাবো আমরা, দক্ষিণ ভারতের ট্রেন যাবে এই জেলা থেকে যাবে। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলবো যে এই জেলা একমাত্র জেলা এখন উত্তরবঙ্গের যেখানে একটা মেডিকেল কলেজ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা হয়েছে, তার বিল্ডিং তৈরি হয়নি। অপদার্থ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা একটা ইট পর্যন্ত গাঁথতে পারেনি। সেই অপদার্থ তৃণমূল কংগ্রেসকে একটিও ভোট দেবেন না। ভোট দিলে আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে বেইমানি করা হবে, দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের সাথে বেইমানি করা হবে, উত্তর দিনাজপুরের মানুষের সাথে বেইমানি করা হবে। তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশি সময় নেব না, সময় না নিয়ে শুধু বলবো যে এইখানে আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা, প্রতি মুহূর্তে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই জেলা তথা বালুরঘাট লোকসভার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যদি লড়াই করতে হয়, এই জেলাকে দিল্লির বুকে চেনাতে হয়, সুকান্ত মজুমদার পিছপা হবে না, লড়াই নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব। এই কথা বলে আপনাদের সকলকে প্রণাম, নমস্কার, বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই এবং জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের 1 নম্বর নেতা, তাকে আহ্বান করছি তার বক্তব্য আমাদের সকলের সামনে রাখার জন্য। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মোদি 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 মোদি। নমস্কার। কেমন আছেন বালুরঘাটবাসী? আপনাদের সকলকে আমার বিনম্র প্রণাম। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। नवरात्र के पावन अवसर पर बालूरघाट की इस धरती से मैं सबसे पहले माता बोल्ला काली को प्रणाम करता हूं। आज महाअष्टमी का पर्व है और कल पूरा देश रामनवमी मनाने जा रहा है। और ये बार ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को
रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। मैं आपको और बंगाल के मेरे सभी भाइयों बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज बालूरघाट का ये जन समूह, जन जन का ये उत्साह, और मैं बाहर देख रहा था हेलीकॉप्टर से उतरते समय चारों तरफ लोग ही लोग हैं। ये उत्साह और हमारी माताओं बहनों का ये आशीर्वाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून 4 जून 4 जून। आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। साथियों, अभी 2 दिन पहले पोइला वैशाख के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले 5 वर्षों की गारंटी दी है। हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। हम मुफ्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल 0 कर देंगे। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी सरकार आने वाले पूरे 5 वर्ष मुफ्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। 70 वर्ष से अधिक हर बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। बंगाल में हमारी बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उन्हें आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। मकान, पानी, बिजली, सिलेंडर जैसी सुविधाएं देश के हर गरीब तक पहुंचाई जाएगी। भाइयों और बहनों, इन सभी फैसलों से बंगाल के गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं का कल्याण होगा। इसलिए जब से मोदी का एक गारंटी कार्ड आया है, टीएमसी के लोग डबल बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचने से रोक रहे थे, गरीबों को पीएम आवास नहीं मिलने दे रहे थे, हर घर नल के जल, हर घर जल का जो मिशन है
उसको गांव तक नहीं जाने दे रहे थे। केंद्र मनरेगा का पैसा भेजती थी, ये रोक कर बैठ जाते थे। अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाएं पहुंचाने की गारंटी दी है। अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाभ मिल जाएगा, गरीब आगे बढ़ जाएगा, तो टीएमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग झूठ और अफवाह फैलाने पर उतर आए हैं। लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है, मोदी गारंटी होलो गारंटी पूर्ण होवार गारंटी। साथियों, हमारे बंगाल ने, बालूरघाट ने देश को कितना कुछ दिया है। यहाँ के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है। बांग्लादेश युद्ध में युवा चुरका मुर्मू के बलिदानों को कौन भूल सकता है। आज बीजेपी यहां आदिवासियों, दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए 8 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले हैं। और ये बीजेपी ही है जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों का विकास कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी ओर टीएमसी जैसी पार्टी है जो दलित, आदिवासी महिलाओं को अपना बंधक बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बालूरघाट में 3 आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। टीएमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने को मजबूर किया। टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी, गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है। लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के लोकतंत्र में दलित, वंचित, आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे। आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीएमसी, ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। साथियों, लेफ्ट और टीएमसी की सरकारों ने बालूरघाट जैसे सीमावर्ती क्षेत्र, जहां दलित, आदिवासी ज्यादा है, उन्हें जानबूझकर विकास से वंचित रखा। यहां इन्होंने जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंचने दी। इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए।
रोजगार के अवसर नहीं पैदा होने दिए। यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गढ़ छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन बीते 10 वर्षों में टीएमसी के तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने बालूरघाट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। भाजपा बालूरघाट स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। अभी जनवरी में भाजपा एनडीए सरकार ने यहां से सियालदाह को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है। बठिंडा से मालदा तक चल रही ट्रेन को भी बालूरघाट से जोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने बालूरघाट एयरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार की नीयत ही नहीं है कि यहां एयरपोर्ट बने। भाइयों और बहनों, टीएमसी के लाख विरोध के बावजूद अगले 5 वर्षों में भाजपा सरकार बंगाल और बालूरघाट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी। ये मोदी की गारंटी है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अच्छे हाईवेज का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपनार सपनो आमार संकल्पो। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और लिख लीजिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी आपके लिए है। साथियों, दिनाजपुर क्षेत्र के पिछड़ेपन का बड़ा कारण यहां के किसानों और कारीगरों की उपेक्षा भी है। गंगा रामपुर का हैंडलूम तांत, यहां के कलाकारों द्वारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगह होती है। यहां के किसान तो जूट उगाते हैं, उससे देश की जरूरत पूरी होती है। इतने दशकों बाद ये भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कलाकारों की चिंता की है। भाजपा ने 18 पारंपरिक व्यवसायों जैसे कुम्हार, लोहार, टोकरी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, ऐसे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, उनका काम बढ़े, उनकी आय बढ़े। हमारी ही सरकार ने बैम्बू को घास की श्रेणी में डाला था ताकि उससे आजीविका चलाने वाले लोगों को बैम्बू काटने में परेशानी न हो। जूट किसानों के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में जूट की
एमएसपी 2 गुने से ज्यादा बढ़ाई है। हमने चीनी, अनाज, ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उपयोग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बढ़े और मेरे जूट किसानों को लाभ हो। जूट किसानों के लिए हमने जूट आई केयर योजना भी शुरू की है, जिसका लाभ बंगाल के 3 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। साथियों, बंगाल की टीएमसी सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की यहां आए दिन हत्याएं होती हैं। बालूरघाट में कुछ वर्ष पहले हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। साथियों, टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। यहां तक कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया है। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। आपको इनकी अफवाहों में नहीं आना है। ये अपने भ्रष्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। साथियों, आने वाली 26 अप्रैल को बंगाल के भविष्य के लिए बड़ा अवसर है। बालूरघाट से आपके सांसद और बीजेपी प्रत्याशी भाई सुकांत मजमूदार जी ने पिछले 5 वर्षों में यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है। आपको इस बार इन्हें रिकॉर्ड वोटों से जीतवाना है। आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूं। आपको पश्चिम बंगाल के घर घर तक मोदी का प्रणाम पहुंचाना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।